بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہمیں بار بار اپنی کتاب ہدایت سے جڑنے کے مواقع عطا فرماتا ہے، جو دلوں کی اصلاح بھی ہے اور زندگیوں کی رہنمائی بھی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج اس بابرکت نشست میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، جہاں ہم اس کی عظیم کتاب قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق تازہ کرنے جا رہے ہیں۔ درود و سلام ہو رحمت للعالمین پیارے آقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں قرآن کی روح سمجھائی اور اپنی سنت سے عبادت کا اصل مقصد سکھایا۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام شرکا کو مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے دورہ قرآن کی اس پہلی نشست میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ سب کا یہاں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دلوں میں قرآن سے محبت زندہ ہے۔ الحمدللہ، آج سے ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس پہلی کلاس میں ہم سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ آیت نمبر 141 تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ وہ حصہ ہے جس میں ہم ہدایت کی بنیاد، دعا کا سلیقہ، ایمان کی پہچان اور امتوں کے عروج و زوال کے اسباق اس میں موجود ہیں۔ دورہ قرآن صرف تلاوت نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے، دل پر لینے اور زندگی میں اتارنے کا نام ہے۔ آئیے نیت کریں کہ ہم اس پورے سفر میں اخلاص، توجہ اور عمل کے جذبے کے ساتھ شریک رہیں گے۔ ہم میں دعوت دینا چاہوں گی ہمارے معزز استاد قرآن کریم کے خادم بھائی مواحد کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس مبارک سفر کا آغاز فرمائیں۔ بھائی مواحد، ہم آپ کو بطور اسپیکر دعوت دیتے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس رمضان میں یہ توفیق عطا کی ہے، اور اسی کے لیے وہ تمام تعریف ہیں، اسی کی حمد ہے، اور سلام ہو اس کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دورہ قرآن میں ہم سورہ فاتحہ سے ہی اسٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ سورہ ناس تک اسی رمضان میں ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ضمن میں ایک دو باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دورہ قرآن بڑا ایزی رہے گا۔ ہم صرف اپنے ترجمے پہ فوکس کریں گے، اور جو بات اس آیت میں ایکسپلین کرنے کی ہے، ایکسٹرا بات ہے، یا کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، تو صرف ہم اسی کو ایکسپلین کریں گے۔ ادروائز ہم اس میں صرف جو قرآن ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اسی کے ترجمے پہ انشاءاللہ فوکس ہمارا کیا جائے گا۔ اسٹارٹنگ میں ہر سورہ کے اسٹارٹنگ میں سورہ کا انٹروڈکشن آپ کو بتا دیا جائے گا، تاکہ اس سورہ کو سمجھنے میں ہمیں تھوڑی آسانی ہو۔ جیسے سورہ فاتحہ اسٹارٹ ہوگی، پھر سورہ بقرہ اسٹارٹ ہوگی، تو شروعات میں ہی اس کا انٹروڈکشن ہم بتا دیں گے، اس پہ ہم نگاہ ڈال لیں گے، تاکہ ہمیں اس سورہ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے ویسا ہی ہم اسے خود سے ریلیٹ کریں۔ ایسے ہم اس قرآن کو سنیں جیسے وہ خود کے اوپر یہ نازل ہو رہا ہے، اور اس کے احکام صرف سننے نہیں ہیں بلکہ ان کو سمجھ کر ان پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا انٹروڈکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ جیسا کہ قرآن میں پہلے نمبر پہ یہ سورہ آتی ہے، اور یہ شان نزول کے اعتبار سے بھی قرآن کی واحد ایک ایسی سورہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ ایک بار میں نازل کی ہے، اور سب سے شروع میں مکمل جو سورہ اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر آیتیں نازل کی تھی، لیکن مکمل سورہ پہلی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ جیسے کہ اس کے میننگ ہوتے ہیں، یعنی انٹروڈکشن کے، وہ کھلنے جس سے کسی چیز کی شروعات ہو، یہ فاتحہ کے میننگ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی ایک خاصیت ہے کہ اس کے جو نام ہیں وہ صرف ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہیں۔
اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی کتاب کی ماں، اس کو ام القرآن کہتے ہیں، اور القرآن العظیم کہتے ہیں، الشفا کہتے ہیں، الرقیہ کہتے ہیں، الصلاح کہتے ہیں، الکنز کہتے ہیں، الدعا اس سورہ کو ہم وہ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے ضمن میں یہ بات ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، اور الف لام میم سے لے کے والناس تک، سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک، یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دعا کے جواب میں پورا قرآن نازل کر دیا۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سے لے کے والناس تک بتا دیتا ہے کہ میرے بندے یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے میرا راستہ۔ تو سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ اپنے معنی کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سب سے بڑی سورہ کہا ہے۔ اس میں کل 7 آیتیں ہیں، لیکن اس کو سب سے بڑی سورہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کے معنی کے اعتبار سے، اور یہ مکی سورہ ہے اور 7 آیتیں اس میں ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے سورہ فاتحہ کے تعلق سے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ کے حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے بندے تک بات پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے وہ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم وہ کر دیا ہے، میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یعنی جب بندہ نماز میں یہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے بیچ ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کا ہے۔ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میں اور میرے بندے کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہے، یہ ایک سمجھوتا ہے، یہ وعدہ ہے جو میرے بندے نے مجھ سے کر دیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے ہی مدد مانگیں گے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا وہ غضب نازل ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا، یعنی یہ سب میرے بندے کے لیے ہے۔ تو اب ہم سورہ فاتحہ کا اسٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو معتوب یعنی پرکوپ اور غضب کا شکار نہیں ہوئے ہیں، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو سورہ فاتحہ جیسا کہ ایک دعا ہے اور اس کا جواب پورا قرآن ہے۔ تو اب ہم اپنے جو قرآن ہے ہم اس پر چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا انشاءاللہ ہم آغاز اب کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے تعلق سے میں انٹروڈکشن میں آپ سے کچھ بات کہہ دوں کہ سورہ بقرہ ایک مدنی سورہ ہے۔ مدنی سورہ اور مکی سورہ میں انتر یہ ہوتا ہے کہ جو سورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی سورہ کہتے ہیں، اور جو سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی سورہ کہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ تو مکی سورہ تھی، لیکن سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، یہ ہجرت کے بعد میں یہ نازل ہوئی۔ جیسا کہ سورہ بقرہ ہے، اس کا نام جو رکھا گیا ہے اسی سورہ بقرہ میں ایک جگہ وہ گائے کا ذکر تھا، تو گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اس لیے نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کے نام لکھے ہیں کہ ایسی سورہ جس کے اندر گائے کا ذکر ہے، یعنی بنی اسرائیل کو گائے جیوا کرنے کا حکم اس میں دیا گیا تھا۔ اس کا اترنے کا زمانہ وہی ہے کہ مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد میں شروعاتی دور میں ہی اس سورہ کو نازل وہ کر دیا گیا ہے۔ تاریخی پس منظر کی اگر میں بات کروں کہ مکہ میں تو صرف مسلمان تھے، پیور مسلمان تھے، لیکن مدینہ میں جانے کے بعد جو اسلام کا واسطہ پڑھنا تھا وہ یہودیوں سے بھی پڑھنا تھا،
वो अहले किताब से भी पढ़ना था। अहले किताब में दोनों शामिल हैं, यहूदी और ईसाई, और साथ साथ मदीना में मुनाफिकीन मुनाफिकीन का भी जो जो रवैया है वो भी सामने आना था। यानी मक्की जिंदगी में कोई मुनाफिक नहीं था। वहां जब कोई ईमान लाता था तो सोच समझ कर ईमान लाता था, लेकिन मदनी जिंदगी में लोग अपने मफाद के लिए या कबीले के पीछे पीछे खुद भी ईमान ले आए, या इस्लाम को डैमेज करने के लिए खुद भी ईमान वो लेकर आ गए थे, लेकिन दिल से उन्होंने तस्लीम नहीं किया था। तो मुनाफिकीन से भी वास्ता यहाँ पढ़ना था। तो अल्लाह ताला ने इसी की बेस पे इस सूरा में अहकाम नाजिल किए हैं। स्टार्टिंग में आयत नंबर 1 से लेके हम 20 तक हम देखेंगे, उसमें 3 कैटेगरी के लोग अल्लाह ताला बताते हैं। पहली कैटेगरी अल्लाह ताला ने बताई है मोमिनों की, कि मोमिनों के अंदर ये सिफात होती हैं। और दूसरी कैटेगरी अल्लाह ताला ने बताई काफिरों की, कि काफिरों के अंदर ये है। फिर अल्लाह ताला ने मुसलसल मुनाफिकीन का जिक्र किया है, कि एक तीसरी तरह की कैटेगरी और है इंसान के दरमियान, वो है मुनाफिकीन। और मदीना आने के बाद जो कि यहूदियों से भी मतलब कि वास्ता पड़ना था। और यहूदी कौन थे? बिगड़े हुए मुसलमान थे। यानी ये पिछले जो मूसा अलैहिस्सलाम है उनकी शरीयत को फॉलो करने वाले थे, लेकिन उन्होंने किताब की तालीमात को बिगाड़ दिया था, इसलिए ये बिगड़े हुए मुसलमान थे। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में आयत नंबर 41 से लेके आयत नंबर 141 तक मुसलसल बनी इसराइल का जिक्र किया है, कि तुम क्यों अल्लाह ताला की नेमतों को भूल रहे हो। तो उन्हें याद दहानी कराई गई है कि वो असल तालीमात पे ईमान लाए, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए। ये उनको शुरुआत में बता दिया गया। और मदीना में पहुंचकर जैसा कि इस्लाम इस्लाम एक एक रियासत का जो मरहला था इस्लाम का वो दाखिल हो चुका था। मदीना में सारे मुसलमानों को इकट्ठा वो किया गया था, और मदीना में एक छोटी सी इस्लामिक रियासत की बुनियाद वहां पर वो पड़ गई थी। तो एक इस्लामिक स्टेट को चलाने के लिए वो कुछ अहकाम, वो कुछ कानून भी चाहिए होते हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हमें वो अहकाम, वो कानून भी हमें बताइए हैं कि आपको सोसाइटी कैसे रन करनी है। तो इसके बारे में भी सूरह बकरा में हमें अहकाम मिलेंगे। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि इस्लाम की बका के लिए कुछ चीजें जरूरी थे, जिनकी अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ही हमें रहनुमाई की है। अगर उन चीजों पे काम न किया जाता तो इस्लाम का अरब के मुआशरे में पनपना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुट्ठी भर सिपाही थे अल्लाह ताला के, वो जानिसार साथी थे मुट्ठी भर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, और अल्लाह के लिए वो अपनी अपनी जान तक का नजराना अल्लाह ताला को देने के लिए तैयार थे। इसलिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में हिदायत देनी वो ज़रूरी थी। इसलिए मुसलमानों को हिदायत दी गई है कि सबसे पहले आपको क्या करना है। मदीना में आके एक रियासत आपको मिल गई, तो आपको दुनिया परस्ती में नहीं लगना है। अब क्या करें? आप सबसे पहले अपने दीन की तबलीग करें। इस इस्लाम को आप फैलाएंगे तभी आपकी रियासत ये एक्सपेंड होगी। ये तभी आप इस अरब में आप जी पाएंगे। वो तभी आपका मतलब वजूद अरब में रह पाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको इस दीन की तबलीग करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब दीन की तबलीग में है तो आपके मुखालिफिन भी आएंगे। तो मुखालिफिन जो लोग हैं उनका गलत रास्ते पे होना आपको साबित कर देना है। और तीसरा, जो आजमाइश है आपको इस रास्ते में आए उसको, उन पर आपको सब्र के साथ उनका मुकाबला करना है। और जो इस्लाम मुखालिफ हैं उनके खिलाफ आपको मुसल्लह जिद्दोजहद भी करनी पड़े, हथियारबंद जिद्दोजहद भी करनी पड़े, तो वो भी आपको वो करना है। और एक चीज़ ये है, पांचवी चीज़ मुसलमानों को ये हिदायत दी कि इस्लामिक निज़ाम को पूरी ताकत के साथ अरब में आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये भी अल्लाह ताला ने, जंग का जो पहला हुक्म है हमें, वो भी हमें सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 190 में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आम मुसलमानों के लिए हिदायत रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने इस सूरा में हमें दी हैं। अब हम आगाज़ करते हैं सूरह बकरा का। आयत नंबर 1 से हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह इसको समझते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ये हुरूफ़ मुक़त्तात हैं। इनका मीनिंग सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं, उनके अलावा दुनिया में कोई भी इनका मीनिंग नहीं जानता। आयत नंबर 2, अल्लाह ताला ने कहा ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हिदायत है उन परहेज़गार लोगों के लिए। यानी ये अल्लाह की किताब है, इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि अल्लाह की तरफ से नहीं है। और इसमें हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए, परहेज़गार लोगों के लिए, जो हराम और हलाल, जो सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं और गलत रास्ते से बचना चाहते हैं, सिर्फ़ उन्हीं के लिए हिदायत है। जो अपनी नफ़्सानी ख्वाहिशात को फ़ॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए इस किताब में कोई हिदायत नहीं है, वो अपनी नफ़्सानी ख्वाहिशात के पीछे ही वो लगे रहें। तो शुरुआत में जैसे कि मैंने बताया था कि 5 आयतें जो हैं वो
ایمان والوں کی صفات یہ 5 آیتیں ہمیں بتاتی ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اب وہ چیزیں اللہ تعالیٰ بتائیں گے آیت نمبر 3 سے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والوں کی خوبی کیا ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ صفات ایمان والوں کی اس میں بتائی گئی ہیں کہ اس کتاب سے وہ لوگ ہدایت پائیں گے جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی کہ وہ نماز بھی قائم کریں، وہ زکوٰۃ بھی دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کریں، وہ غیب پر ایمان لائیں، جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو بھی مانیں، اور جو کتاب یہ قرآن ہے اس پر بھی ایمان لائیں، اور آخرت کا بھی وہ یقین رکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں کہا، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی یہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم لوگ کون ہیں، یعنی کافر کون ہیں۔ یہ تھے ہدایت یافتہ لوگ، اب آئیں گے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم کون لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا آیت نمبر 6 میں، جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کون سی باتوں کو؟ جو اوپر بیان کی گئی ہیں، ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے لیے برابر ہے چاہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، کہ بہرحال وہ کبھی ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے حقدار ہیں۔ تو یہ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کافر ہیں، جنہوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب آیت نمبر 8 سے 20 تک مسلسل منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین ایک تیسری کیٹیگری ہے جو نہ مومن ہے نہ کافر ہے، وہ بیچ کی درمیانی وہ کیٹیگری ہے، یعنی اوپر سے تو وہ شو کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، زبان سے تو انہوں نے اقرار کر لیا لیکن دل سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے، تو ان کا ذکر اب سورہ بقرہ میں آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر اصل میں وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کے بدلے میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ دھرتی میں بگاڑ نہ پیدا کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو سدھار کرنے والے ہیں۔ وہ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ تو یہ ان کی صفات جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جب ان سے کہا گیا جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے آئیں، یعنی جو مومن ہیں جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے آئیں اس طرح تم بھی ایمان لے کر آؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ وہ خبردار، وہ سچ تو یہ ہے کہ یہ خود بے وقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی منافقین سے جب کہا گیا کہ تم بھی انہی طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح دوسرے مومن لائے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو بے وقوف ہیں کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس دین اسلام کے لیے لگ گئے ہیں، کہ ہم ان کی طرح بے وقوف ہم بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ہی بے وقوف ہو جو تم یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ یہ گھاٹے کا سودا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور آیت نمبر 14 میں پھر ان کی صفات اور مزید بتائیے منافقین کی۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے صرف مذاق کر رہے تھے۔ یعنی جس محفل میں گئے انہی کے ہو گئے۔ ایمان والوں کی محفل میں گئے تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کی محفل میں گئے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ دوگلے لوگ تھے جو درمیان میں تھے، اور یہ بڑے خطرناک یہ لوگ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی لمبی کیے جاتا ہے، یہ اپنی وہ سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اور بتایا آیت نمبر 17 میں، اور کافروں اور منافقوں جو کہ منافقین ہیں اور جو کافر ہیں ان کی ایک اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے ان کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ واضح کریں گے۔ اب ہمیں اس مثال کو آپ بڑی دھیان سے سنیے گا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کے دیکھنے کی روشنی چھین لی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا
कि अंधेरियों में इन्हें वो कुछ नज़र नहीं आता। यानी इनकी मिसाल ऐसी है, आयत नंबर 17 में जो मिसाल बताई गई है, इनकी मिसाल ऐसी है कि एक आदमी ने आग जलाई, तो आग जलने के बाद क्या होगा? रोशनी हो जाएगी, तब उसको देखने लगेंगे अगर अंधेरे में है। लेकिन इनकी मिसाल ऐसी है कि आग तो जल गई, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत तो वाज़ेह कर दी, लेकिन आग जलने के बाद अल्लाह ताला किसी आदमी की आंखें ही छीन ले तो उसे फिर भी नजर नहीं आएगा, उसके लिए तो बराबर है, उसके लिए तो अंधेरा ही है। ऐसी इस इनके साथ हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हिदायत की रोशनी वहां जलाई और इन्होंने कबूल नहीं की और ये मुनाफिकाना जो रवैया है वो इख्तियार कर लिया, तो अल्लाह ताला ने इनसे हिदायत ही छीन ली है। फिर आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने कहा, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब ना पलटेंगे, ये अब ना पलटेंगे। फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, या फिर इनकी मिसाल यूं समझो कि आसमान से जोर की बारिश हो रही है और उसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के डर से वो कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं और अल्लाह हक के इंकारियों को हर तरफ से घेरे लिए हुए हैं। यानी इनकी मिसाल यूं समझो कि आसमान की जोर से बारिश हो रही है और अंधेरी घटा है और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुन के ना, यानी जो बिजली जो कड़कती है उसके कड़ाके सुनकर अपनी जानों के डर से वो कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं और समझते हैं कि अब हम महफूज होगा बिजली से। बिजली तो आप पर आकर रहेगी, आपने सिर्फ कानों पे उंगलियां लगा ली और आप ये समझे कि अब हम बिजली से महफूज हो गए, तो वो तो आकर रहेगी। ये वही बात है कि कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर ले तो और ये समझे कि अब बिल्ली चली गई, बिल्ली नहीं गई, बिल्ली, हाँ, बिल्ली तो वही है, आपकी जान ले लेगी। ऐसे ही ये जब सीधा रास्ता वाजे हो गया, आप उस पर ईमान नहीं ला रहे हैं, आप जानबूझ के अंधे बेरे गूंगे बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आखिरत के अजाब से आप बच निकलेंगे। और आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला ने कहा कि चमक से इनकी हालत ये हो रही है कि मानो बहुत जल्द बिजली इनकी आंखों की रोशनी उचक ले जाएगी। जब जरा कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनके सुनने और देखने की ताकत बिल्कुल ही छीन लेता। यकीनन वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अब आयत नंबर 21 से 29 तक अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अल्लाह ताला की बंदगी की दावत दी है और दलीलों के साथ ये बंदगी की दावत सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने दी है। तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने बंदगी की, यानी सिर्फ अल्लाह ताला की वो इबादत करें, वो कुरान पर वो ईमान लेकर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए। इस चीज़ की दावत आयत नंबर 21 से 29 तक आपके सामने अब आएगी। अल्लाह ताला ने कहा, लोगों बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और जो तुमसे पहले जो लोग जो लोग हो गुजरे हैं उन सबका पैदा करने वाला है। तुम्हारे बचने की उम्मीद इसी सूरत से हो सकती है। यानी उस रब की बंदगी करनी है जो तुम्हारा पैदा करने वाला भी है और जो तुमसे पहले के लोग थे उन सब का पैदा करने वाला भी वही था। तुम्हारे बचने की जो उम्मीद की जा सकती है वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है कि तुम सिर्फ अल्लाह ताला की ही बंदगी इख्तियार करो। फिर अल्लाह ताला ने कहा, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके जरिए से हर तरह की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रोजी जुटाई। तो जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह के मुकाबले में ना लाओ। यानी तुम आसमान आसमान पे आप गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ताला ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछा दिया। यानी कि जमीन इतनी रिवॉल्व होने के बाद भी अपने एक्सिस पे भी, सूरज के चारों तरफ भी, और पूरा सोलर सिस्टम इतनी स्पीड से चलने के बाद भी हमें महसूस तक नहीं होता। तो ये हमारे लिए एक, जैसे बिस्तर होता है आराम की जगह, जैसे फर्श होता है कि हमें महसूस भी नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने ये इतना कुछ किया हमारे लिए। आसमान को छत बनाया, वो छत का क्या काम है कि वो प्रोटेक्ट हमें करती है। तो हमें जो आसमान है, हर जो स्पेस से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेस हैं उनसे हमें हमें प्रोटेक्ट करती हैं और भी चीज़ों से हमें कि बचाती हैं। अल्लाह ताला ने ऊपर से हमारे लिए पानी बरसाया। पानी का निज़ाम आप देखें, इस पे गौर व फ़िक्र करिए। फिर उसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार अल्लाह ताला ने निकाल कर हमारे हमारे लिए खाने के लिए रोज़ी जुटाई। तो जब तुम इतना सब कुछ जानते हो तो अल्लाह अल्लाह के मुकाबले में दूसरे को ना लाओ। यानी पूरी कायनात में सारी खिदमत, पूरी कायनात को आपकी खिदमत के लिए लगा दिया। हर चीज़ का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह के मुकाबले में आपको किसी को भी नहीं लाना है। आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने वो कुरान हकीम की हमें अज़मत बताई है
और हमें ये बता दिया और एक चैलेंज दे दिया तमाम इंसानों को जो कयामत तक आएंगे, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। अल्लाह ताला ने कहा है, और अगर तुम्हें इस मामले में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है, यानी कि कुरान, ये हमारी है या नहीं, तुम्हें इस बारे में शक है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है या नहीं है, तो इस जैसी एक सूरह ही बना लाओ। ये चैलेंज है। अगर ये शक है तो इस जैसी एक सूरह ही बना लाओ। अगर बना लाए तो हम मान लेंगे कि ये किताब इंसानों की बनाई हुई है, ये किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखी है। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कहा, अपने सारे हिमायतियों को बुला लो, यानी खुद भी ट्राई कर लो, और जितने भी तुम्हारे हिमायती हैं सारे दुनिया के इंसान मिल जाएं, जितने भी तुम्हारे शैतान हैं सब के सब मिल जाएं, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी मदद लेना चाहो ले लो, यानी एक अल्लाह को छोड़कर जिसकी भी मदद लेना चाहें आप ले लीजिए। इस जैसी एक सूरह ही बनाकर आप लाएं। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, इससे बेहतर कानून बनाकर दिखाएं, इससे बेहतर हिदायत लाकर दिखाएं। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। आप ये ट्राई कर लो और आपको पता लग जाएगा कि ये किताब अल्लाह की है या इंसान की तरफ से है। तो आप खुद मानेंगे कि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से ही है। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 24 में कहा है, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया, और यकीनन वो कभी नहीं कर सकते, अगर तुमने ट्राई किया लेकिन तुम फेल हो गए, और यकीनन तुम कभी कर भी नहीं सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो तैयार की गई है हक का इनकार करने वालों के लिए। आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला ने कहा, और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और इसके मुताबिक अपने अमल ठीक कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये बात बताई जा रही है कि जो लोग इस किताब पर ईमान लाए, जिन्होंने मान लिया ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और अपने अमल ठीक कर लिए, यानी सिर्फ माना नहीं बल्कि इसके अकॉर्डिंग अपने अमल भी कर लिए। सिर्फ ईमान ही काफी नहीं है, नेक अमाल भी उतने ही जरूरी हैं। कुरान हमें यही तालीम देता है। जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और इसके मुताबिक उन्होंने अपने अमल भी ठीक कर लिए, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल देखने में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वहां हमेशा रहेंगे, यानी जन्नत में कोई मौत नहीं आएगी। सारी डिजायर वहां पे आपकी पूरी होंगी। अब आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला हमें बताएंगे कि कुरान करीम से गुमराह कौन होता है। बहुत से लोग कहते हैं कुरान पढ़ने से गुमराह हो जाते हैं, तो आयत नंबर 26 अब हमें यही बताएगी कि कुरान से गुमराह कौन होते हैं और हिदायत कौन पाते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, हाँ, अल्लाह इससे नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी मामूली किसी चीज की मिसाल दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि यह हक है और उनके रब की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो इन्हें सुनकर कहने लगते हैं, ऐसी मिसालों से अल्लाह को क्या वास्ता। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में डाल देता है और बहुतों को सीधा रास्ता दिखा देता है, और गुमराही में वो उन्हीं को डालता है जो फासिक है। कुफ़ार ये कहते थे कि अल्लाह ताला का ये अगर ये कलाम अल्लाह की तरफ से, तो इसमें तो मच्छर की मिसाल है, और ये कोई अल्लाह की तरफ से ये कलाम है तो मच्छर की क्यों मिसाल है इसमें। अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह ताला इससे नहीं शर्माता। अल्लाह ताला ये मिसाल देता है तुम्हें समझाने के लिए, और इन्हीं मिसालों के जरिए बहुत से लोग हिदायत पा जाते हैं और बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं। और गुमराह वो होते हैं जो फासिक हैं। इस कुरान से वो गुमराह होंगे जो हिदायत लेना ही नहीं चाहेंगे, जो कुरान को पढ़ेंगे इसमें कमियां निकालने के लिए, तो वही लोग इस कुरान से गुमराह होंगे। अदरवाइज जो हिदायत लेना चाहता है, जो सीधे रास्ते पर चलना चाहता है, तो उनके लिए ये कुरान हिदायत की किताब है सरासर। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 27 में, अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। आयत नंबर 27, अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और जमीन में बिगाड़ पैदा करते हैं। हकीकत में यही लोग वो घाटे उठाने वाले हैं। आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला कुरान हकीम का फलसफा हमें बताएंगे। तुम अल्लाह के साथ इनकार का रवैया कैसे अपनाते हो, हालांकि तुम बेजान थे। उसने तुमको जिंदगी दी और फिर वही तुम्हें मौत देगा, और फिर तुम्हें दोबारा जिंदगी देगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। यानी तुम अल्लाह ताला के साथ इनकार का रवैया कैसे अपनाते हो, उसने ही तो तुम्हें जिंदगी दी है, वही तुम्हें मौत देगा,
اور پھر تمہیں اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا فلسفہ ہے کہ اصل چیز آخرت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 میں فرمایا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف وہ توجہ کی، اور سات آسمان ٹھیک طور پر تیار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زمین میں چیزیں پیدا کی ہیں وہ ہمارے لیے کی ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، یعنی پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہماری خدمت کرے، انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب آیت نمبر 30 سے اور 39 تک آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا قصہ اسٹارٹ ہوگا۔ ابلیس جو کہ شیطان ہے، اس کا قصہ اسٹارٹ ہوگا آیت نمبر 30 سے 39 تک۔ اس قصے کو بڑا دھیان سے آپ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ ریپرزینٹیٹو کو۔ ریپرزینٹیٹو کا کیا کام ہوتا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل ایک اسٹیٹ ہے، یا ہمارا ملک غلام تھا، وہ کس کا غلام تھا؟ انگریزوں کا، لندن میں۔ اس کا جو ان کے جو ہیڈ بیٹھے تھے وہ کہاں بیٹھے تھے؟ لندن میں۔ یہ ہندوستان کو کنٹرول ہندوستان کہاں سے ہو رہا تھا؟ لندن سے۔ لیکن ہندوستان میں بھی ایک وائس رائے تھا جس کا ہم نام پڑھتے ہیں ہسٹری میں، کہ لارڈ وائس رائے، اور یہ الگ الگ ہم جو نام پڑھتے ہیں، تو وہ وائس رائے کون تھا؟ وہ ریپرزینٹیٹو تھا، کس کا؟ لندن کی حکومت کا۔ یعنی اس کو اختیار تھا انڈیا میں کہ وہ جو چاہے، انڈیا میں اس کو اختیار تھا کہ وہ جو لندن سے پالیسی آ رہی ہیں ان پالیسی کو انڈیا میں امپلیمنٹ کرے۔ اگر وہ امپلیمنٹ مطلب ان پالیسی کو نہ کرے جو لندن سے آ رہی ہیں، تو کیا کریں گے؟ اس کو ہٹا دیں گے، اس ریپرزینٹیٹو کو ہٹا دیں گے۔ اگر وہ لندن کے خلاف چلا جائے تو کیا کریں گے؟ وہی جو اس کے مطلب سپاہی تھے، وہی اس کو جنجیروں میں قید کر کے لندن کی حکومت کے پاس لے کے جائیں گے کہ اس نے آپ سے بغاوت کی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کا کیا کام ہے؟ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس کو ایز اٹ از اس زمین پہ نافذ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آ رہا ہے اس کو زمین میں نافذ کرنا ہے۔ اگر وہ نافذ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بھی پولیس آئے گی، اللہ تعالیٰ کے بھی سپاہی آئیں گے، وہ فرشتے ہیں، وہ پکڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ عذاب دیں گے۔ تو خلافت ہمیں قائم کرنی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ ہر ایک کو اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے ہیں، سب سے پہلے اپنی نفس پہ ان حکم کو امپلیمنٹ کریں، اس قرآن کو اپنی نفس پہ اتاریں، پھر اپنے خاندان سے شروعات کریں، اور ایسے ہی ایسے ہمیں پوری دنیا میں اس اسلام کے حکم جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے ہیں، ان کو ہمیں اس اسلام پہ، اس دنیا میں اسلام کے حکم کو ہمیں غالب کرنا ہے۔ یہی خلیفہ کا کام ہے، اور یہی جو خلیفہ کا کام ہے، یہی جب پوری دنیا میں غالب ہو جائے گا، ایک اسٹیٹ بن جائے گی، تو یہی چیز خلافت بن جاتی ہے، جس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر ذرا اس وقت کا وہ تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ آپ کی تعریف اور شکر کے ساتھ تسبیح اور آپ کی پاکی کا بیان تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ وہ کہا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یعنی فرشتوں کا اعتراض تھا کہ زمین میں خلیفہ، یعنی خلیفہ ورڈ سے وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کو اختیار دے دیے جائیں گے، وہ چاہے کچھ بھی کرے، وہ چاہے آپ کا قانون کو نافذ کرے یا نہ کرے۔ تو فرشتوں نے کہا، وہ تو خون خرابہ کرے گا، اگر آپ اس کائنات میں کسی کو بھی اختیار دیں گے وہ اپنی مرضی چلائے گا۔ آپ کی پاکی اور حمد تو ہم بیان کر رہے ہیں نا، فرشتے لگے پڑے ہیں دن رات اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے شک تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ خون خرابہ کریں گے، یہ بغاوت بھی کریں گے مجھ سے، لیکن انہی لوگوں میں میرے مخلص بندے بھی تو ہوں گے جن کے لیے میں نے جنت تیار کری ہے۔ وہ میرے قانون کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی نفس پہ بھی اور اس زمین پہ بھی، میں ان کے لیے بنا رہا ہوں۔ ہر 1000 میں سے 999 تو جہنمی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ ابن آدم میں سے ایک جنتی ہے، 1000 میں سے ایک جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک کے لیے یہ تمام انسانوں کو بنایا کہ مجھے یہ بندے چاہیے، مجھے یہ بندے چاہیے، 1000 میں سے ایک چاہیے، 999 اگر خراب ہے بغاوت کریں گے جہنم بھر دوں گا ان سے۔
कोई परवाह नहीं है अल्लाह ताला को। तो ये फरिश्तों का एतराज़ था, अल्लाह ताला ने उसका जवाब भी दे दिया। आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने कहा, इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए। बीच में पूरा वाक़या है कि आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसमें अपनी तरफ से रूह फूँकी और फिर फरिश्तों को हुक्म दे दिया था और आदम अलैहिस्सलाम को वो सारे नाम सिखा दिए थे, यानी जो चीज़ें हैं, हर चीज़ का इल्म आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया था और वही इल्म है जो आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों से निकल रहा है। जो टेक्नोलॉजी है, जो आज हम जितने भी एडवांस हो चुके हैं, ये सब वही इल्म है जो आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया गया था। ये ये क़यामत तक हमारे इंसानों के ज़रिए ये इल्म निकलता रहेगा। तो इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए। फिर उन्हें उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के मुकर्रर करने से इंतज़ाम बिगड़ जाएगा, तो ज़रा इन चीज़ों के नाम बताओ। आयत नंबर 32 में अल्लाह अल्लाह ताला ने कहा, उन्होंने अर्ज़ किया, ऐब से पाक तो आप ही की हस्ती है। हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। यानी आपके सिवा कोई नहीं है। फरिश्तों ने हार मान ली कि हमें इन चीज़ों के नाम नहीं पता। इसका मतलब क्या हुआ? फरिश्तों को जो महदूद इल्म अल्लाह ताला ने दिया है, जो जिस फ़ील्ड का फरिश्ता है उसको सिर्फ़ उसी का इल्म दिया है, जो हवा का फरिश्ता है उसे सिर्फ़ हवा का इल्म दिया है, जो पहाड़ों का फरिश्ता है उसको सिर्फ़ पहाड़ों का इल्म दिया है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के अल्लाह ताला ने नाम बता दिए थे। इसलिए फरिश्तों ने कहा था कि हमें नहीं पता, ऐब से पाक तो सिर्फ़ आप ही की हस्ती है। तो इसलिए ये फरिश्तों ने अपनी हार वहाँ पर तस्लीम कर ली थी। फिर आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने कहा, आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने कहा, फिर अल्लाह ने आदम से कहा, तुम इन्हें उन चीज़ों के नाम बताओ। जब उसने उनको उन सब के नाम बता दिए, तो अल्लाह ने कहा, मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं आसमान और ज़मीन की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो जो तुमसे छिपी हुई हैं। जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो, वो भी मुझे मालूम है, जो कुछ तुम छुपाते हो, उसे भी मैं जानता हूँ। फिर आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने कहा, फिर जब हम फरिश्तों को हुक्म दिया फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ, तो सब झुक गए मगर इब्लीस, ये इब्लीस नाम है शैतान का, और शैतान का असली नाम था अजाजील। लेकिन जब इसने सजदा नहीं किया और अकड़ गया, तो ये अल्लाह ताला से इनने तौबा नहीं की बल्कि अकड़ गया सजदा ना करके, तो इसका नाम पड़ा फिर इब्लीस, यानी अल्लाह ताला की रहमत से दूर ये हो चुका है, तो इसका नाम वहां से इब्लीस पड़ गया। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा, फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ, तो सब झुक गए मगर इब्लीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानी में और नाफरमानों में शामिल हो गया। तो इब्लीस कोई फरिश्ता नहीं था। कोई ये कह सकता है अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इब्लीस कोई फरिश्ता नहीं था, लेकिन इब्लीस जिन्नों में से था, लेकिन जिन्नों में बड़ा इबादत गुजार था। अल्लाह ताला की इबादत करके वो बड़ा नेक और तकवा वाला वो जिन बन चुका था। तो अल्लाह ताला ने उसको अपने करीब रख लिया था और फरिश्तों के साथ उसको शामिल कर लिया था। जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था, तो उसमें अजाजील भी, यानी जो इब्लीस है वो भी शामिल था, और उसने इस हुक्म की पैरवी नहीं की। उसने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जा रहा है, उसको ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूँ और मैं इससे अफ़ज़ल हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा, बात ये नहीं थी, आर्गुमेंट नहीं चाहिए मुझे, हुक्म मेरा था, मेरा हुक्म मानना था। मैंने कहा सजदा करना है तो सजदा करना है। आर्गुमेंट नहीं चलेगा कि मैं अफ़ज़ल हूँ, मुझे आग से बनाया है, इसे तूने मिट्टी से बनाया है। तो आर्गुमेंट नहीं चलना था, वहाँ पे हुक्म मानना था। तो असल चीज़ होती है हुक्म मानना। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 35 में कहा, फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जी भरकर जो चाहो खाओ, मगर उस पेड़ का रुख ना करना वरना जालिमों में गिने जाओगे। यानी अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए एक पेड़ रख दिया। दुनिया में भेजने से पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम का और माँ हव्वा का अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, और एक पेड़ अल्लाह ताला ने उसकी निशानदेही कर दी और बता दिया कि इसका फल नहीं खाना, ये आपकी इम्तिहान है, आप इसके पास भूल के भी मत जाना वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। और आखिरकार आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने कहा, आखिरकार शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ का लालच देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वो थे। हमने हुक्म दिया, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक खास वक्त तक जमीन में ठहरना है और वहीं गुजर बसर करना है। यानी क्या हुआ?
اللہ ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रोका था इस पेड़ का फल नहीं खाना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था और फिर बाद में ये एक लंबा किस्सा है, उसकी यहाँ एक्सप्लेनेशन की वो टाइम नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट में बता दूं। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद, उनके अंदर रूह फूकने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को अकेला जन्नत में रखा गया था, लेकिन जब उन्हें तन्हाई महसूस हुई तो अल्लाह ताला ने उनके लिए फिर माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया उन्हीं की बची हुई मिट्टी से, और फिर वो दोनों जन्नत में रहने लगे। और जो फरिश्ता अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो चुका था, वो फरिश्ता बोल रहा हूँ इब्लीस, वो चैलेंज देकर गया था अल्लाह ताला को कि मैं अपना जो ये चैलेंज है कि मैं इससे बेहतर हूँ, ये मैं साबित करके दिखाऊंगा और तमाम इंसानों को मैं जहन्नुम की आग में झोंक कर रहूंगा। ये चैलेंज देकर इब्लीस चला गया था। अल्लाह ताला अल्लाह ताला से मोहलत ले गया था कि तू मुझे कयामत तक मोहलत दे, यानी उस दिन तक मोहलत दे जिस दिन ही इन सब इंसानों का हिसाब किताब होगा, उस दिन तक तू मुझे मोहलत दे दे। तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि जा, तुझे मोहलत है, तुझे जो करना है कर, तुझे भी फ्री विल है। और आदम अलैहिस्सलाम को भी आगाह कर दिया, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इब्लीस अपना चैलेंज पूरा करने आया है। इब्लीस हमारा दुश्मन है, वो हमें आग में डालना चाहता है। वो अल्लाह ताला से मोहलत लेकर आया है कयामत तक की कि वो हमें वसवसे डालेगा, और उसके पास इख्तियारात भी हैं, उसके पास फ्री विल भी है, उसके पास पावर भी है। वो हमारा खुला दुश्मन है। तो फिर उसने अपनी दुश्मनी का आगाज वहीं से स्टार्ट कर दिया, जन्नत से ही। और फिर जन्नत में क्या करा कि आदम अलैहिस्सलाम को और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को उन्होंने इस पेड़ का लालच दे दिया कि अल्लाह ताला ने पता है आपसे इस पेड़ को क्यों रोका। ये वसवसे उन्होंने उनके दिल में, मतलब शैतान ने डाले, क्योंकि जन्नत में तो उसकी एंट्री बैन थी। वो बाहर से ही वसवसे डालने की ताकत उसके अंदर थी, वो ताकत उसका इस्तेमाल करके उन्होंने वसवसे डाले आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम के अंदर, कि अल्लाह ताला ने इसलिए इस पेड़ का फल खाने से रोका ताकि तुम्हें हमेशा की जिंदगी न मिल जाए, हमेशा की हुकूमत न मिल जाए, हमेशा तुम मतलब कि जवान रहोगे। इसलिए अल्लाह ताला ने रोका है। और उसके बहकावे में आके आदम अलैहिस्सलाम ने और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस पेड़ का फल खा लिया। और फिर अल्लाह ताला ने ये, जैसे ही उन्होंने फल खाया, वो एक दूसरे के सामने बरहना हो गए, उनके कपड़े उतर गए, यानी जो जन्नत की नेमतें थी वो उनसे छीन ली गई हैं। और फिर उनको अल्लाह ताला से फिर आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया और फिर उन्हें दुनिया में भेजा गया और बता दिया गया कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, यानी शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम शैतान को अपना ही दुश्मन समझो, एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम्हें इससे अवेयर रहना है। और ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैं अपने नबियों के जरिए तुम्हें हिदायत भेजता रहूंगा, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे वही सीधे रास्ते पे हैं, और जो मेरी हिदायत की पैरवी नहीं करेंगे वही जहन्नुम में जाने वाले लोग हैं और शैतान को अपना दुश्मन समझे। ये पूरी स्कीम, पूरा वाक़या हमें बता देता है कि आदम अलैहिस्सलाम कैसे दुनिया में आए। और आदम अलैहिस्सलाम को तो भेजा ही दुनिया में गया। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सज़ा के तौर पे नहीं आए, बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत के तौर पे आए। सज़ा तो उसकी दी जाती है जो कोई जुर्म किया हो, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने जो खता उनसे हुई थी, उन्होंने माफ़ी कर ली, और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने अपने बंदे की माफ़ी कबूल कर ली। जब माफ़ी कबूल कर ली तो उस माफ़ी पे सज़ा नहीं दी जाती। ये तो अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में ही भेजना था, दुनिया के लिए उनको बनाया गया था, इसलिए भेजा गया। लेकिन एक इम्तिहान से गुजारा गया ताकि वो समझ लें कि तुम्हारी क्या कमज़ोरियाँ हैं। तुम लालच में आ सकते हो, बहकावे में आ सकते हो, तो इन चीज़ों से तुम दुनिया में जाके तुम्हें बचना है, शैतान को अपना दुश्मन समझना है, और जो हिदायत मेरी तरफ से आएगी, मैं अपने पैगंबर भेजता रहूँगा, हिदायत वाज़ेह करता रहूँगा। जो लोग उनकी पैरवी करेंगे वही सीधे रास्ते पे हैं, जो लोग पैरवी नहीं करेंगे वही गुमराह हैं। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने यही बताया था। आखिरकार शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ का लालच देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वो थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक खास वक्त तक जमीन में ठहरना है और वहीं गुजर बसर करना है। यानी वो खास वक्त तक वो कब है, जबकि वो कयामत आएगी, वो खास वक्त तक आपको जमीन में ठहरना है। आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला ने कहा, उस वक्त आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीख कर तौबा की, जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया, यानी तौबा कबूल हो गई, क्योंकि वो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। हमने कहा तुम यहां से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुंचे, तो जो लोग मेरी उस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ना होगा। यानी जो हिदायत मेरी तरफ से आएगी, जैसे कि हम तक हिदायत आई है कुरान, जो लोग कुरान की पैरवी करेंगे उन पर ना कोई खौफ होगा,
ना उनको कोई रंज होगा। तो यही अल्लाह ताला ने हमें बताया। आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला ने कहा, और जो उसको कबूल करने से इनकार करेंगे, यानी जो उस हिदायत की पैरवी नहीं करेंगे जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आई है, जैसा कि हमारे पास आखिरी हिदायत आई है वो है कुरान, जो उसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे, वो आग में जाने वाले लोग हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम का और इब्लीस का जो किस्सा है वो इख्तिताम होता है। और आयत नंबर मतलब 40 से और 141 तक मुसलसल बनी इसराइल का यानी यहूदियों का यहाँ से सिलसिला स्टार्ट होगा। यहूदियों से यहाँ से खिताब है कि उन्हें अल्लाह ताला उन्हें अपनी नेमतें याद गिनवाएगा, और उनकी जो नाशुक्री थी उस पर अल्लाह ताला उन्हें झंझोड़ेगा। और बनी इसराइल का किस्सा हमें हिस्ट्री के तौर पे नहीं बताया गया। इस किस्से को पढ़ते समय, इस किस्से को सुनते समय हम इसे खुद से रिलेट करें, कहीं हम में तो ये खराबी नहीं है जो बनी इसराइल में आ गई थी। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है, तुम पिछली उम्मतों के यानी अहले किताब के पीछे पीछे चलोगे। अगर उनमें से कोई, अगर जो गो है उसके सुराग में गया होगा तो मेरी उम्मत भी पीछे पीछे उनके सुराग में ही जाएगी। अगर बनी इसराइल में से किसी शख्स ने अपनी माँ के साथ जिना किया था, तो मेरी उम्मत में से भी कोई बदबख्त उठेगा, वो भी अपनी माँ के साथ वो जिना करेगा। यानी इतना आप उनको फॉलो करेंगे। तो इसलिए एज अ वार्निंग के तौर पे हमें बताई जा रही है कि इनसे ये गलतियां हुई थी, तुम ये गलतियां नहीं करना। तो बनी इसराइल का जो किस्सा है ये हिस्ट्री के तौर पे आपको नहीं समझना, बल्कि आपको आज के हालात से रिलेट करना है। कहीं हमारे अंदर तो ये कोताही नहीं है, बनी इसराइल वाली बात कहीं हमारे अंदर तो नहीं आ गई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक थे इसहाक अलैहिस्सलाम और एक थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। बड़े बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनको अरब में छोड़ दिया था, यानी मक्का में अम्मी हाजरा के साथ छोड़ा था, और उनसे जो नस्ल चली उस नस्ल से आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो इसहाक अलैहिस्सलाम थे उनके बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम के थे फिर 12 बेटे, उनमें से एक थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उनसे जो नस्ल चली, जो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से जो नस्ल चली, ठीक है, उसको कहते हैं बनी इसराइल। वो है बनी इसराइल, वो है यहूदी। और बनी इसराइल में आखिर में जो नबी आए वो है ईसा अलैहिस्सलाम, जिनका बनी इसराइल ने उनका इनकार कर दिया और अपने वेम गुमान में उनका कत्ल कर दिया। और इसलिए क्रिश्चियन और यहूदी ये बढ़ गए, यहूदी और नसारा इसलिए हो गए, अदरवाइज सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। और आखिर में जो नबी आने थे, इनकी प्रोफेसीज जो थी, इनकी निशानियां जो थी, आ, जो कि तौरात में और इंजील में मौजूद थी, लेकिन ये फिर भी उन पर ईमान नहीं लेकर आए। तो ये फाइनल हमारे पास कुरान आ चुका है। तो हमें स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 40 से। बनी इसराइल, अल्लाह ताला बनी इसराइल की नेमतें गिनवाएगा और उन्हें बताएगा कि तुमने इन नेमतों की कैसे नाशुक्री आपने की है। अल्लाह ताला ने कहा, ए बनी इसराइल, जरा ख्याल करो मेरी उस नेमत का जो मैंने तुमको दी थी। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो, मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूं, और तुम मुझी से ही डरो। यानी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से कहा है कि मेरी उन नेमतों का ख्याल करो जो मैंने तुम्हें दी थी। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, दरिया को फाड़ दिया, तुम्हारे एक एक कबीले के लिए एक एक चश्मे निकाल दिया, मनवा सलवा तुम पर नाजिल किया, तुम्हारे लिए किताब नाजिल की, तौरात तुम पे उतारी। बनी इसराइल में कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरा कि उनकी रहनुमाई करने के लिए कोई नबी मौजूद ना हो। कितनी नेमतें हैं अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दी थी। तो अल्लाह ताला वही नेमतें गिनवा रहा है, मेरी नेमत को याद करो, और मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो, जो मेरा अहद है मैं तुम्हें उसे उसे मैं पूरा करूंगा। बनी इसराइल का से कहा गया, जो तुमने वादे किए हैं मुझसे उसे तुम पूरा करो, और मैंने जो तुमसे वादे किया उसे मैं पूरा करूंगा। यानी तुम इस किताब की तालीमात को दुनिया में इम्प्लीमेंट करो, इस किताब पे तुम अमल करो, तो मैं तुम्हें दुनिया में हुकूमत दूंगा, खिलाफत दूंगा। ये अल्लाह ताला अपने वादे से पीछे हटने वाला नहीं है। और मुझी से तुम डरो। आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला ने कहा, और मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ। यानी जो किताब भेजी है, अब कौन सी भेजी थी? कुरान। मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ, यह उस किताब की तायीद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। इसलिए सबसे पहले तुम ही इसके इनकार करने वाले ना बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयतों को ना बेच डालो, और मेरे गजब से बचो। तो ये अल्लाह ताला, बनी इसराइल क्या करते थे? अल्लाह ताला की आयतों को बेचते थे। हाँ, बेचने का मतलब देखें, इसको हम थोड़ा समझ लें। आयतों को वो ऐसे बेचते थे कि भाई सूर्य बकरा खरीद लो मुझसे, मैं 500 रुपए की सूर्य बकरा बेच रहा हूँ। कोई ऐसे बेचता है आयतों को? नहीं। ऐसे कौन बेचता है?
इन्होंने कैसे बेची थी? अल्लाह ताला के जो आयतें थी अ, उनके जो हुक्म थे वो लोगों को पैसों के लिए गलत बता दिया करते थे कि नहीं अल्लाह ताला की किताब में ये है और पैसे हासिल कर लिए। बादशाहों के लिए अलग कानून बता दिए और गरीबों के लिए अलग कानून बता दिए। ये था आयतों को बेचने का मतलब। कुरान को, अल्लाह ताला की किताब को असल माना और मफ़हूम से हटाकर अपनी मर्ज़ी का मनमाना कि माना उसको पहनाकर लोगों की सहूलत के हिसाब से बता देना, उसको मॉडर्न कर देना इस्लाम को, वही तो है अल्लाह ताला की आयतों को बेचना और यही बनी इस्राइल करते थे और यही आज के टाइम में हम कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा, झूठ का रंग चढ़ाकर हक के बारे में शक पैदा ना करो और ना जानते पूछते हक को छिपाने की कोशिश करो। नमाज कायम करो, ज़कात ज़कात दो और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं, उनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता अपनाने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अक्ल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता अल्लाह ताला ने आयत नंबर 44 में कहा, दूसरों को तो तुम हुक्म देते हो नेकी का रास्ता अपनाने को, लेकिन अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो, क्या तुम अक्ल से बिल्कुल भी काम नहीं की करते? यानी दूसरों को दावत देने से पहले हम उस पर पहले खुद अमल करें। ऐसा ना हो दूसरों को तो नेकिया का हुक्म दे रहे हो और अपने गिरबान में हम झांक कर नहीं देख रहे हैं। तो ये इनकी गलती थी जो कि अल्लाह ताला ने हमें बताया है। आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला ने कहा है, सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक बड़ा मुश्किल काम है, मगर उन फरमाबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है। यहाँ इस आयत को वो लोग कोट करते हैं जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मांगते हैं। वो कहते हैं कि गैरुल्लाह से तो कुरान में भी मांगा गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं कहा है कि सब्र और नमाज से मदद लो, तो इसलिए हम अल्लाह के बंदों से मदद मांग रहे हैं, तो क्या गलत है? क्या गलत है? ये दलील देंगे वो आपको। तो उनसे कहो, सब्र और नमाज से मदद लेने का मतलब ये है कि जब उस पर कोई मुश्किल आए तो उस मुश्किल में मैं साबित कदम रहूं, मैं अल्लाह ताला पे तवक्कुल करूं और मैं अल्लाह ताला के आगे झुक जाऊं और अल्लाह ताला से दुआ करूं और उस मुश्किल से मैं निकल जाऊंगा। यानी सब्र और की नमाज से मदद का लेने का असल हकीकी मतलब ये है। क्या कोई ये कहता है या सब्र अल मदद या नमाज अल मदद? ये तो कोई नहीं कहता। सब्र और नमाज से लेने का मतलब ये है कि मैं जो मुश्किलात मुझ पर आई हैं उस पर मैं साबित कदम रहूं और अल्लाह ताला के हुजूर में नमाज पढ़ूं, अल्लाह ताला के आगे मैं झुकूं, अल्लाह ताला से दुआ करूं, अल्लाह ताला उस मुश्किल से मुझे आसान करेगा। तो ये है सब्र और नमाज से लेने का असल मतलब। बेशक नमाज एक बड़ा ही मुश्किल काम है, अल्लाह ताला ने खुद बता दिया बड़ा मुश्किल काम है। एक के बाद एक आ जाती है और ठंड के दिनों में अभी असर पढ़ कर गए, फिर मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब पढ़ कर गए, ईशा का टाइम हो गया। रमजान में तो फिर आपने रोजा खोला, मगरिब पढ़ी, थोड़ा सा आराम किया, ईशा पढ़ी, ईशा के बाद तरावी पढ़े, तरावी के बाद रात को तहज्जुद भी लोग पढ़ते हैं। तो बड़ा ही मुश्किल काम है, मगर उन फर्माबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन उनके लिए मुश्किल नहीं है, उनकी सिफ़ात अल्लाह ताला आगे हमें बताएँगे। आयत नंबर 46 में बताई अल्लाह ताला ने, जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ पलटकर जाना है। यानी उनके लिए नमाज़ मुश्किल नहीं है, जो आखिरत का ईमान रखते हैं। जो जानते हैं कि उन्हें एक दिन अपने रब से मुलाकात करनी है, तो उनके लिए नमाज़ बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये मुश्किल चीज़ उन्हीं के लिए है कि जो अपने रब से मुलाकात का ईमान नहीं रखते। तो आप समझ जाएँ जो बंदा नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए मुश्किल क्यों है? क्योंकि उसका आखिरत पे ईमान कमज़ोर है। वो नहीं मानता कि मैं अपने रब से मिलूँगा या नहीं मिलूँगा। लेकिन जो लोग ये मानते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा है कि उनके लिए कुछ भी नमाज़ मुश्किल नहीं है। आयत नंबर 47 में हमें बताया गया है, आयत नंबर 47 में कि आखिरत में जो हमने खुद के साख्ता सहारे बना रखे हैं, उन सब की नफ़ी यहाँ पर की गई है। अल्लाह ताला ने कहा, ए बनी इसराइल, इसराइल की औलाद, याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुमको दी थी और उस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर बढ़ाई दी थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा, ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फिदिया लेकर छोड़ा जाएगा और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। यानी आखिरत से डरो जिस दिन ना सिफारिश कबूल होगी, ना फिदिया यानी जुर्माना लेकर छोड़ा जाएगा और ना मुजरिमों को कहीं से मदद उस दिन मिलेगी। आयत नंबर 49 से अल्लाह ताला बताएंगे कि बनी इसराइल में अल्लाह ताला के क्या एहसान अजीम थे
اور बनी इसराइल ने क्या बेवफाई अल्लाह ताला से की है, उस चीज को अल्लाह ताला याद दिलाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा, याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फिरौन के लोगों की गुलामी से छुटकारा दिलाया, उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में डाल रखा था, तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे, तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। यानी फिरौन क्या करता था कि बनी इसराइल के लड़कों को मार दिया करता था और लड़कियों को जिंदा रहने देता था, क्योंकि उसके किसी पंडित ने प्रोफेसीज की थी कि बनी इसराइल में से एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हें क्या करेगा, तुम्हारी हुकूमत पलट देगा। और वही लड़का था, कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम, जिसने फिरौन को गारत किया था। तो फिर फिरौन ने कहा था, अच्छा लड़का पैदा होगा बनी इसराइल में, जब भी कोई लड़का पैदा होगा मैं मार दूंगा। तो लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर, उनकी माँ ने उनको टोकरी में रख दिया था जब वो पैदा हुए थे, और वो फिरौन के ही घर में, अल्लाह ताला की हिकमत देखें, जिस बच्चे से उसकी हुकूमत को वो उल्टवाना था, उसी के घर में उसकी परवरिश अल्लाह ताला ने करवा दी मूसा अलैहिस्सलाम की। उसकी माँ को इल्हाम हुआ कि अपने बच्चे को टोकरी में नदी में रख दे, और वो नदी जो जा रही थी फिरौन के महल की तरफ जा रही थी, और फिरौन की बीवी बड़ी आ, नेक इंसान थी, और मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा और उनके कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने उसको पालने के लिए वहां से रख लिया, और फिरौन से कहा कि इसको मैं पालूंगी। और फिरौन ने भी इजाजत दे दी। यानी उसी महल में, फिरौन के महल में ही मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उन्होंने पाई, और उनकी दूध पिलाया उनकी असल माँ ने ही। वो एक डिटेल वाक़या है, इंशाल्लाह कुरान में आगे जाकर वो हमारे सामने आएगा। और आसिया अलैहिस्सलाम की जो हिस्ट्री है वो भी हमने, उसको हमें देखना चाहिए कि वो बड़ी तकवे वाली मोमिना थी और ईमान वाली थी, और जन्नती औरतों की सरदार हैं, जो कि फिरौन की बीवी हैं। जन्नती औरतों की सरदार वो रहेंगी, 4 सरदार हैं, 4 में से एक फिरौन की बीवी है, आसिया। फिर अल्लाह ताला ने आगे कहा, याद करो वो वक्त, आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला ने कहा था, याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फिरौन के लोगों की गुलामी से छुटकारा दिलाया, उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में डाल रखा था, तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इसी हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। याद करो वो वक्त जब हमने समुद्र को फाड़कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर उसमें से तुम्हें बखैरियत वो गुजरवा दिया, फिर वहीं तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनियों को डुबो दिया। याद करो जब हमने मूसा को 40 दिन व रात के वादे पर बुलाया, तो उसके पीछे तुम बछड़े को अपना माबूद बना बैठे, उस वक्त तुमने बड़ी जाति की थी। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात देने के लिए 40 दिन के लिए कोहे तूर पर बुलाया था, और मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे बनी इसराइल ने क्या करा था कि हमारा रब कुछ बना दें आप। तो एक सारा सोना इकट्ठा किया, उसको पिघलाया, और एक माबूद उन्होंने बना लिया, एक गाय की शक्ल का, एक बछड़े की शक्ल का, और उसमें से आवाज आने लगी थी। जो सामरी जादूगर था उसने उसमें कुछ मिट्टी डाली, उसमें से आवाज आने लगी थी, और बनी इसराइल से उसने कह दिया, यही है तुम्हारा खुदा, यही है तुम्हारा खुदा, और वो सब उसकी इबादत करने लगे थे। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि जब मूसा को बुलाया तो तुम अल्लाह के अलावा किसी और की आप इबादत करने लगे थे। आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला ने कहा, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। यानी इतना होने के बाद भी तुम्हें माफ कर दिया, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। आयत नंबर 53 में जो आएगी वो मुर्तद की सजा आएगी। यानी जो लोग इस्लाम छोड़ दें, इस्लामिक स्टेट का ये इस्लामिक स्टेट में कोई इस्लाम छोड़ता है तो वो मुर्तद होता है, वो मुर्तद है तो वो वाजिबुल कत्ल होता है। वो सजा आयत नंबर 53 में आएगी। फिर अल्लाह ताला ने कहा, याद करो ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और फुरकान दी ताकि तुम उसके जरिए सीधा रास्ता पा सको। किताब दी, उसको फुरकान में अल्लाह ताला ने कहा तो रात को। आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला ने कहा, याद करो जब मूसा ये नेमत ये नेमत लिए हुए पलटा, तो उसने अपनी कौम से कहा कि लोगों, तुमने बछड़े को अपना माबूद बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया है, इसलिए तुम लोग अपने पैदा करने वाले के सामने तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो। इसी में तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारी भलाई है। उस वक्त तुम्हारे पैदा करने वाले ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, तो वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ पर जो लोग, जिन लोगों ने शिरक किया था, मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे बछड़े को माबूद बना लिया था, तो उसमें क्या कहा था, वो सब लोग नहीं थे लेकिन बहुत बड़ी तादाद थी। तो क्या कहा था, उन्हीं के कबीले के जो उनके भाई थे, भाई बंधु थे, उनके जरिए उनको कत्ल करवाया जाए। मतलब कि वो वो किया गया क्योंकि उन्होंने
छोड़ दिया था, इसलिए मुर्तद की सज़ा कुरान में इस आयत से मिलती है कि मुर्तद की सज़ा वो कत्ल है। फिर आयत नंबर 55 से बनी इसराइल का एक अजीब मुतालबा आएगा। तो 1 घंटा हमारा हो चुका है मुकम्मल और 55 आयतों तक हम पहुँचे हैं। इंशाल्लाह हम 11 बजे से ऊपर नहीं लेकर जाएंगे इस क्लास को, कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में हम बाकी का हम कवर कर दें। 11 बजे से ऊपर हम नहीं जाएंगे। 2-3 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। 30 हो रहे हैं, इंशाल्लाह 32 पे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। 2 मिनट का रेस्ट है, आप पानी वगैरह इसमें पी सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, 2 मिनट का रेस्ट हमारा ख़त्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करते हैं आयत नंबर 55 से। बनी इसराइल का एक अजीब मुतालबा था जो अल्लाह ताला से है, वो इंशाल्लाह अब आएगा। अल्लाह ताला ने कहा, याद करो जब जब तुमने मूसा से कहा था, हम तुम्हारी बातों पर हरगिज़ यकीन न करेंगे, जब तक कि अपनी आँखों से खुले तौर पर खुदा को तुमसे बातें करते ना देख लें। उस वक़्त तुम्हारे उस वक़्त उस वक़्त वो तुम्हारे देखते-देखते एक ज़बरदस्त वो कड़के ने तुमको आ लिया। यानी बनी इसराइल ने मुतालबा किया था कि हम जब तक तुम्हें नहीं मानेंगे, जब तक तुम खुद खुदा से बातें करते हुए हमारे आमने-सामने ना देख लो, हम डायरेक्ट खुदा को ना देख लें। तो फिर इसकी काफ़ी डिटेल है, लेकिन एक वो कड़ाका आया और सब के सब ये बेहोश हो गए थे 70 आदमी। तो फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 56 में कहा, तुम बेजान होकर गिर चुके थे, मगर फिर हमने तुमको जिला उठाया, शायद कि इस एहसान के बाद तुम शुक्रगुज़ार बनो। आयत नंबर 57 से अल्लाह ताला बताएँगे हमें बनी इसराइल पर क्या-क्या इनामात हैं और उनकी क्या नाशुक्री थी, इस चीज़ को अल्लाह ताला फिर बताएँगे। हमने तुम पर बादल की छाया की, मन व सलवा का खाना तुम्हारे लिए जुटाया। यानी उनके रहने के जगह इंतज़ाम नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने बादल कर दिए थे धूप से बचने के लिए। बादल की छाया की और उनके खाने के लिए मन व सलवा, यानी आसमान से उनके लिए ये मन व सलवा उतरता था, खाने का तुम्हारे लिए जुटाया। और तुमसे कहा कि जो पाक चीज़ें तुम्हें दी हैं, उन्हें खाओ, मगर तुम्हारे बाप-दादा ने जो किया, वो हम पर ज़ुल्म ना था, बल्कि उन्होंने अपने अपने ही ऊपर ज़ुल्म किया। फिर याद करो जब हमने कहा था, ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है, इसमें दाखिल हो जाओ, इसकी पैदावार जिस तरह मज़े से इसकी पैदावार जिस तरह मज़े से खाओ, मगर बस्ती के दरवाज़े में सजदरेज़ होते हुए झुके-झुके दाखिल होना और कहते जाना, हित्ततुन हित्ततुन, हम तुम्हारी खताओं को माफ़ कर देंगे और अच्छे काम करने वालों पर और ज़्यादा मेहरबानी वो करेंगे। आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ने कहा, मगर जो बात वो कही गई थी, जालिमों ने उसे बदल कर वो कुछ और कर दिया। आखिरकार हमने ज़ुल्म करने वालों पर आसमान से अज़ाब उतारा। ये सज़ा थी उन नाफ़रमानियों की जो वो कर रहे थे। यानी बनी इसराइल को
हुक्म दिया था, बनी इसराइल कह रहे थे कि हमें मनवा सलवा खा खा के ऊब गए हैं, हमें प्याज चाहिए, तरकारी चाहिए, मिर्ची मसाले चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा था सामने जो बस्ती है, वो बस्ती कौन सी थी? फिलिस्तीन। वो थी फिलिस्तीन। यहाँ से एंट्री होती है बनी इसराइल की फिलिस्तीन में। इससे पहले जब हम कि फ़िरौन के जो इजिप्ट से आए थे, ये मिस्र से आए थे, तो यहाँ एंट्री होती है। तो ये डर गए थे, अरे नहीं मूसा, तू और तेरा खुदा जाकर ही लड़ ले, जब तुम जीत जाओ तो बता दियो, हमसे जंग नहीं होगी इनसे, ये तो बड़ी ताकतवर वो लोग हैं। तो इतने ये डरपोक थे बनी इसराइल। आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने कहा, याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की, तो हमने कहा फुला चट्टान पर अपनी लाठी मारो, चुनाचे उससे 12 चश्मे फूट निकले। क्योंकि वो 12 कबीले थे। आ, या, वो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिसमें से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तो उनके 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए थे, 12 खानदान वजूद में आए थे, और इन्हीं को कहते हैं बनी इसराइल। यानी इस जो याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब था, वो इसराइल भी था, इसलिए कहते हैं बनी इसराइल। इसराइल की औलाद यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले, और हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह उसके पानी लेने की है। उस वक्त ये हिदायत कर दी गई थी कि अल्लाह की दी हुई रोजी खाओ पियो, और जमीन में फसाद न फैलाते फिरो। आयत नंबर 61 में अब अल्लाह ताला बताएंगे कि जो उन्होंने नाफरमानी की है, उसकी अल्लाह ताला की जो नाशुक्री की है, इतने इनामात के बाद भी उसकी सजा क्या है। आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला कहेंगे, याद करो जब तुमने कहा था कि ये मूसा, हम एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं कर सकते, अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए जमीन की पैदावार, साग, तरकारी, गेहूं, लहसुन, प्याज, दाल वगैरह पैदा कर। तो मूसा ने कहा, क्या एक बेहतर चीज की जगह तुम घटिया दर्जे की वो चीजें लेना चाहते हो? अच्छा, किसी शहरी आबादी में जा रहो, जो कुछ तुम मांगते हो वहां मिल जाएगा। आखिरकार नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि जिल्लत व रुसवाई और गिरावट व बदहाली उन पर छा गई, और वो अल्लाह के गजब में घिर गए। ये नतीजा था इसका कि वो अल्लाह की आयतों से कुफ्र करने लगे थे, और पैगंबरों को नाहक वो कत्ल करने लगे थे। ये नतीजा था उनकी नाफरमानियों का, और इस बात का कि वो शरीयत की हदों से निकल निकल वो जाते थे। यानी जो यहूदियों की जो असल जो कसूर था, वो था अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र, पैगंबरों का कत्ल, और शरीयतों की हदों से निकल जाना, शरीयत की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाना। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 62 में कहा, यकीन जानो कि अरबी नबी को मानने वाले हो, या यहूदी या ईसाई या साबी, जो भी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, उसका बदला उसके रब के पास है, उसके लिए किसी डर और अफसोस का मौका नहीं है। अब आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला बनी इसराइल को अल्लाह ताला का निज़ाम कायम करने की ताकीद अल्लाह ताला यहाँ पर करेंगे कि अल्लाह ताला की शरीयत को नाफिज करें, अल्लाह ताला की जो खिलाफत है उसको कायम करें, अल्लाह ताला के कानून को इम्प्लीमेंट करें। अल्लाह ताला वो यहाँ पर आयत नंबर 63 में बताएंगे, याद करो वो वक्त जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पक्का अहद लिया था, और कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामना, और जो हुक्म और हिदायतें उसमें लिखी हुई हैं उन्हें याद रखना। इसी जरिए से उम्मीद की जा सकती है कि तुम तकवा की रविश पर चल सकोगे। यानी जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती से थामना, और हुक्म और हिदायतें उसमें लिखी हैं उन्हें याद रखना। इसके जरिए ही उम्मीद वो की जा सकती है। अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ को उनके सर पे उठा के ये अहद उनसे ले लिया था। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 64 में, मगर इसके बाद तुम अपने अहद से फिर गए, इस पर भी अल्लाह की मेहरबानी और उसकी रहमत ने तुम्हारा साथ न छोड़ा, वरना तुम वो कभी के तबाह हो चुके होते। आयत नंबर 65 में फिर बनी इसराइल की इबरतनाक वो सजा के बारे में अल्लाह ताला ने बताया, फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम है जिन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था। हमने कह दिया था कि बंदर बन जाओ और इस हाल में रहो कि हर तरफ से तुम पर धुतकार और फिटकार है। सब्त का कानून क्या था? अल्लाह ताला ने शनीचर के दिन मछली पकड़ने को मना किया था बनी इसराइल को, और अल्लाह ताला आजमाइश के लिए शनीचर के दिन ही ज्यादा मछलियां उछल उछल के उनके सामने आती थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि शनिचर को अल्लाह ताला का हुक्म है कि हम मछली ना पकड़े, वो क्या कर जाया करते थे कि शनिचर को तो उन्होंने जाल बांध दिया एक दिन पहले, या फ्राइडे की रात को वो मतलब कि जाल बांध गए अपना मछली पकड़ने का। शनिचर को कुछ नहीं किया, शनिचर को सारी मछलियां उसके अंदर फंस गई,
इतवार के दिन वो खोल लिया और कह रहे हैं कि देखो हमने तो शनिचर को नहीं पकड़ी, हमने तो इतवार को पकड़ी मछली। तो ये था सप्त का कानून, शनिचर का कानून। ये इतना बेवकूफी भरा कानून था। तो उनके अंदर तीन गिरोह बन गए थे। एक गिरोह क्या था, जो खुद मछली पकड़ रहा था। एक गिरोह वो था जो उन्हें रोक रहा था कि भाई तुम ये काम ना करो, अल्लाह ताला इससे नाराज होगा। एक गिरोह और था जो साइलेंट था, वो और जो मतलब अल्लाह ताला के वो कानून की तरफ बुला रहे थे उन्हीं को करते, भाई तुम तो समझा रहे हो ना, ये नहीं समझेंगे तुम्हारी बात। तो ये तीन तरह के लोग, तीन तरह के वो बन गए थे। तो वही सबके कानून की हम बात चल रही। अल्लाह ताला ने उन सबको वहां पर बंदर बना दिया था। आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला ने कहा, इस तरह हमने उनके अंजाम को उस जमाने के लोगों और बाद की आने वाली नस्लों के लिए इबरत और डराने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। आयत नंबर 67 से जो बात स्टार्ट होगी वो ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म को बिना चूं चरा आपको अमल करना है। अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म आ गया उस पर आपको अमल करना है। फिर वो वाकया याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय जबा करने का हुक्म देता है, कहने लगे तुम हमसे मजाक करते हो। मूसा ने कहा, मैं इससे खुदा की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों की सी बात करूं। बोले, अच्छा अपने रब से दरख्वास्त करो कि हमें उस गाय की कुछ तफसील बताए। मूसा ने कहा, अल्लाह कहता है कि वो गाय ऐसी होनी चाहिए जो न बूढ़ी हो न बच्चिया हो बल्कि औसत उम्र की हो, इसलिए जो हुक्म दिया जाता है उसको पूरा करो। फिर कहने लगे कि अपने रब से ये और पूछ दो कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, वो कहता है पीले रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग सोख यानी चटकीला हो, देखने वाले का जी खुश हो जाए। फिर बोले, अपने रब से साफ साफ पूछकर बताओ कैसी गाय मतलूब है, हमने उसे मुतय्यन करने में शुबा हो गया है, अल्लाह ने चाहा तो हम उसका पता लगा लेंगे। मूसा ने जवाब दिया, अल्लाह कहता है कि वो गाय ऐसी हो जिसके वो जिससे काम नहीं लिया जाता हो, ना जमीन जोतती हो ना पानी खींचता हो, सही सालिम और बेदाग हो। इस पर वो पुकार उठे कि हाँ अब तुमने ठीक पता बताया। फिर उन्होंने उसे जबा किया, वरना तो ऐसा करते मालूम ना होते थे। गाय को जबा करने का हुक्म इसलिए दिया था क्योंकि बनी इसराइली वो जहां से निकल के आए थे फिरौन की कौम से, और फिरौन की कौम में गाय को माबूद समझा जाता था। गाय माता थी उनकी, गाय को काटा नहीं जाता था, गाय को माता मानते थे। तो गाय माबूद थी उनकी। तो बनी इसराइल में भी वो गाय की अजमत कहीं ना कहीं थी आने के बाद भी। तो अल्लाह ताला ने उनका इसी तरह इम्तहान लिया। अगर तुम्हारे दिल में इसकी अजमत है तो तुम इसको जबा करो। लेकिन बनी इसराइल वहां बहाने करने लगी। अल्लाह ताला के हुक्म पे बेचूं चरा आपको अमल करना है। तो बनी इसराइल ये जो पूछ रहे थे ना कि वो हमें समझ में नहीं भाई अल्लाह की तरफ से हुक्म था वो गाय जबा करनी है, कोई भी गाय लो जबा कर दो, बार बार पूछने जा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से ताकि अल्लाह ताला टाल दे। लेकिन अल्लाह ताला ने भी सब कुछ बता दिया। और इनके टालम टोली पे ऐसी गाय की निशानदेही अल्लाह ताला ने कही वो की जो कि वहां पे इकलौती गाय थी। और इन्होंने उस गाय के बदले जितने किलो की वो गाय थी इतना किलो सोना दिया, फिर वो गाय उसने उनको दी और फिर उन्होंने उसको वो जबा किया। तो अल्लाह ताला के हुक्म से बचना चाह रहे थे, अल्लाह ताला ने ऐसे उनकी अजमत इस गाय से निकाली थी। आयत नंबर 72 से अब अल्लाह ताला की निशानियां हमारे सामने आएंगी। और तुम्हें याद है वो वाकया जब तुमने एक आदमी की जान ली थी, फिर उसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम थोपने लगे, और अल्लाह ने फैसला कर दिया कि जो कुछ तुम छिपाते हो उसे खोल कर रख देगा। उस वक्त हमने हुक्म दिया मकतूल यानी एक जने का कत्ल हो गया था तो उसके कातिल का पता लगाना था। तो अल्लाह ताला कह रहा है उस वक्त हमने, आयत नंबर 73 में, उस वक्त हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश पर उसके एक हिस्से से चोट लगाओ। देखो इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदगी देता है, तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। यानी गाय का जो गोश्त था मकतूल की लाश पे मारने से वो जो मुर्दा था वो बोल पड़ा था अपने कातिल का, उन्होंने बता दिया था। अल्लाह ताला ने कहा इसमें आखिरत की भी निशानी है। आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला ने कहा, मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में वो कुछ उनसे भी बड़े हुए। क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से मतलब चश्मे वो यानी कि पानी फूट बहते हैं, कोई फटता है उसमें से पानी निकल आता है, कोई खुदा के डर से कांप कर भी गिर पड़ता है। अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। आयत नंबर 75 से, बनी इसराइल जो जानबूझकर अल्लाह ताला के कलाम में तहरीफ किया करते थे, बदल दिया करते थे अल्लाह ताला की आयतों को, उसके बारे में हमें ये वाक्या मिलेगा। अल्लाह ताला ने कहा, ए मुसलमानों अब क्या। हाँ, अल्लाह ताला मुसलमानों से कि यहाँ पे मुखातिब है बनी इसराइल का किस्सा नेमतें बयान करने के बाद, ए मुसलमानों
اب क्या इन लोगों से तुम ये उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? यानी मुसलमान वो ये सोचते थे ये जो यहूदी हैं, बनी इसराइल हैं, इनमें तो इतने नबी आए हैं, ये आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान क्यों नहीं लेकर आए? तो अल्लाह ताला ने बता दिया ये इनकी नेमतें थी और ये इनके करतूत थे। ये बाज नहीं आएंगे अपनी चीजों से। ये अपने नबियों की इन्होंने मतलब ठीक से नहीं सुनी, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये क्या नमाज, ये क्या ईमान लेकर आएंगे? तो यही मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, मुसलमानों अब क्या इन लोगों से तुम ये उम्मीद रखते हो, इनकी करतूतें आपने देख ली, इनसे ये उम्मीद रखते हो ये तुम्हारी दावत पे ईमान लाएंगे? हालांकि इनमें से एक गिरोह का रवैया ये रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर जानते हुए उसमें फेरबदल कर दिया। जानबूझकर अल्लाह ताला की आयतों में इन्होंने फेरबदल किया। ये अल्लाह के रसूल आयत नंबर 76 में है, ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी उन्हें मानते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से अकेले में बातचीत होती है तो कहते हैं कि बेवकूफ हो गए हो, इन लोगों को इन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोली है, ताकि तुम्हारे रब के पास से तुम्हारे मुकाबले में कोई हुज्जत यानी दलील में पेश करें। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां इन पर वाज़ेह थी, इसलिए बताते थे कि आप इन निशानियों का किसी को ना बताएं। आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला ने कहा, और क्या ये जानते नहीं है कि जो कुछ ये छिपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, अल्लाह अल्लाह को सब बातों की खबर है। आयत नंबर 78 से बनी इसराइल की अवाम और उनके जो मौलवी थे, उनके जो स्कॉलर्स थे, उलमा, उनका क्या हाल है वो हमें यहाँ पर बताया जाएगा आयत नंबर 78 से। इनमें एक दूसरा गिरोह उम्मियों यानी अनपढ़ों का है, जो किताब का इल्म तो नहीं रखते, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और सिर्फ वोम व गुमान पर चले जा रहे हैं। तो हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से शरा का नवस्ता यानी दीन का मसौदा लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं अल्लाह की तरफ से आया है, ताकि इसके बदले में थोड़ा सा फायदा हासिल कर लें। उनके हाथों का ये लिखा उनके लिए वो तबाही का सामान है और उनकी ये कमाई भी उनके लिए तबाही का सबब है। यानी बनी इसराइल के जो स्कॉलर्स थे, मौलवी थे, वो क्या कहते थे, अपने हाथों से ही उन्होंने कानून बनाए, अपने हाथों से ही उन्होंने कि दीन लिखा और बता दिया ये अल्लाह की तरफ से आया है। यही हम कर रहे हैं। हमारे स्कॉलर्स ने कह दिया ये जी ये है, ये है, वो हमने मान लिया। ना कुरान में रेफरेंस है, ना हदीस में रेफरेंस है, ना सहाबा इकराम से वो मतलब बात साबित है, बस हमारे फिरके से साबित है। तो ये स्कॉलर्स का हाल था, यही आज के मौलवियों का हमारे हाल है। आयत नंबर 80 से अल्लाह ताला बनी इसराइल की झूठी जो उम्मीदें हैं उनके बारे में हमारी वो रहनुमाई करेंगे। वो कहते हैं दोजख की आज हमें हरगिज नहीं छूने वाली, सिवाय इसके कि वो कुछ दिन की सजा मिल जाए तो मिल जाए। इनसे पूछो क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया जिसके खिलाफ वो नहीं जा सकता? या बात यह है तुम अल्लाह के जिम्मे डालकर ऐसी बातें कहते हो जिनके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है, उनका जिम्मा वो तुमने लिया है। यानी जो यहूदी थे वो ये कहते हैं कि दोजख हमारे लिए कोई है, हम तो अल्लाह ताला के चुनिंदा बंदे हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हम तो जन्नत में ही जाएंगे, दोजख तो दूसरों को लिए है। तो अल्लाह ताला ने कहा ये क्या अल्लाह ताला ने कोई अहद ले लिया कि अल्लाह ताला उसके खिलाफ नहीं जा सकता? तुम अल्लाह ताला के जिम्मे ऐसी बातें डालकर कह रहे हो जो अल्लाह ताला ने नहीं कही है, जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। और यही हम कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हम तो आखिरी नबी के उम्मती हैं, हम तो जन्नत में ही जाएंगे। तो यही हमारा हाल है और यही बनी इसराइल का हाल था। फिर आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला ने कहा है जो भी बुराई कमाएगा अपनी खताकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो दो जगह और दो जग में ही हमेशा रहेगा। यानी जो भी बुरा काम करेगा वो हमेशा दो जग में ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने कहा और जो लोग ईमान लेकर आएंगे, ईमान लाएंगे और अच्छे अमल करेंगे वही जन्नती है और वो उसमें हमेशा रहेंगे। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 83 में कहा याद करो इसराइल की औलाद से हमने पक्का अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मोहताजों के साथ अच्छा सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना, जक़ात देना, मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए, अब तक फिरे हुए हो। फिर याद करो हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना, तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो। मगर आज वही तुम हो
کہ अपने भाई बंधुओं को कत्ल करते हो, अपनी बिरादरी के वो कुछ लोगों को बेघर कर देते हो, जुल्म व जाति के साथ उनके खिलाफ जत्थेबंदियां करते हो, और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए फिदिये का लेन देन करते हो, हालांकि उन्हें घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे का इनकार करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करे उनकी सजा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की जिंदगी में भी रुसवा और बेइज्जत होकर रहे और आखिरत में भी बहुत सख्त अजाब की तरफ फेर दिए जाएं। अल्लाह उन हरकतों से बेखबर नहीं है जो तुम कुछ ये कर रहे हो। यानी बनी इसराइल में एक फॉल्ट यही था, आयत नंबर 85 में ही। बनी इसराइल में एक फॉल्ट ये था कि अल्लाह ताला की आ, अपने जो भाई बंधु थे उनसे पहले तो वो जंग कर रहे हैं, अपनी मतलब आपस में लड़ गए, मुसलमान मुसलमान ऐसा मान लीजिए, बनी इसराइल आपस में लड़ गए। उनमें से जो कैदी आ गए, एक एक के कैदी दूसरे ने पकड़ लिए, फिर उनको ना फिदिया देकर छुड़ा रहे हैं कि ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है, फिदिया देकर छुड़ा लो। तो ये भी तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि आपस में ना लड़ो। तो अल्लाह ताला ने कहा क्या तुम किताब के एक हिस्से पर तो अमल कर रहे हो और दूसरे का आप छोड़ देते हो? अगर तुम्हारा यही हाल है तो दुनिया में भी रुसवा और जलील होगा और आखिरत में शदीद अजाब में आप झोंक दिए जाओगे। तो यही चीज हमारे लिए है, अगर कुरान के एक हिस्से पर ईमान लाते हैं और आधे का इनकार करते हैं तो दुनिया में भी हमारे लिए रुसवाई और आखिरत में भी हमें शदीद अजाब की तरफ झोंक दिया जाएगा। आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर दुनिया की जिंदगी खरीद ली है, इसलिए न इनकी सजा में कोई कमी होगी न इन्हें कोई मदद पहुंचेगी। आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला ने कहा, हमने मूसा को किताब दी, उसके बाद पे दर पे लगातार रसूल भेजे, आखिर में मरियम के बेटे ईसा को रोशन निशानियां देकर भेजा और पाक रूह से उसकी मदद की। फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारे वो ख्वाहिशों के खिलाफ कोई चीज लेकर तुम्हारे पास आया तो तुमने उसके मुकाबले में सरकशी ही की, किसी को झुटलाया और किसी को कत्ल कर डाला। वो कहते हैं हमारे दिल महफूज है, नहीं, असल बात यह है कि उनके इनकार की वजह से उन पर फिटकार पड़ी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। ब, अब आयत नंबर 89 से बनी इसराइल का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हसद थी, यानी उन पर ईमान नहीं लाए तो उनसे जो हसद करते थे कि ये हमारी कौम में से क्यों नहीं हुए, ये बनी इसराइल में से क्यों नहीं है, ये बनी इस्माइल में से क्यों आ गए नबी, आखिरी नबी, इसलिए ये उनका हसद था। उसके बारे में अल्लाह ताला हमें बताएंगे। और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है उसके साथ उनका बर्ताव क्या है, इसके बावजूद कि उसके आने से पहले वो कुफ्र करने वालों के मुकाबले में जीत और मदद की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। खुदा की लानत इन इनकार करने वालों पर, कैसा बुरा जरिया है जिसे अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ने उतारी है उसको कबूल करने से सिर्फ इस जिद की वजह से इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फजल और रिसालत से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज दिया, इसलिए अब ये गजब के हकदार हो गए और ऐसे इंकारियों के लिए सख्त रुस्वा करने वाली सजा है। यानी बनी इसराइल की ये गलती थी, जब मदीने में जब इन्हें कोई अरब के लोग मारते थे तो कहते थे अभी तो तुम हम पे जुल्म कर रहे हो, जब आखिरी नबी आएंगे ना हम उन पर ईमान लेकर आएंगे और उनके साथ मिलकर हमारी हुकूमत कायम होगी, फिर हम तुम्हें बदला देंगे। और जब वो आखिरी नबी आए तो वो अरब के लोग ओस और खजरत तो वो बेचारे ईमान लिया है, वो तो मुसलमान हो गए, और बनी इसराइल इस जिद में ईमान नहीं लाए, वो यहूदी इस जिद में ईमान नहीं लाए, ये हम में से क्यों नहीं थे, ये बनी इस्माइल में से क्यों आ गए, ये अरबों में से क्यों आ गए। तो ये जिद और हठधर्मी इनकी बताई थी। आयत नंबर 91 में अल्लाह ताला ने कहा, जब उनसे कहा जाता है जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उस पर ईमान ले आओ, तो कहते हैं हम तो सिर्फ उस चीज पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी बनी इसराइल की नस्ल में उतरी है। इस दायरे के बाहर जो कुछ आया है उसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक है उस तालीम की तस्दीक और तायीद कर रहा है जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा उनसे कहो अगर तुम उस तालीम ही पर ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे पास आई थी, तो उससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों को खुद बनी इसराइल में जो पैदा हुए थे उनको क्यों कत्ल करते हो? यानी जो पैगंबर बनी इसराइल में आते थे उनको क्यों कत्ल कर दिया? ईसा अलैहिस्सलाम तो बनी इसराइल में ही आए थे, उनको अपने अपने जोम में तो आपने वो कत्ल कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया। तुम्हारी यही डिमांड है, बनी इसराइल में आते तो तुम ईमान लाते, लेकिन जो बनी इसराइल में आए थे तुमने तो उनको भी कत्ल कर डाला था, पैगंबरों को आरे से चीर मतलब आपने डाला था, पैगंबरों को आपने वो कत्ल कर वो कर डाला था। आयत नंबर 92 से बनी इसराइल के जो जराइम है वो अल्लाह ताला बताएंगे। तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी रोशन निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उसके पीठ मोड़ते ही बछड़े को माबूद बना बैठे। फिर जरा उस मिसाक
यानी अहद को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी जो हिदायतें हम दे रहे हैं उनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगाकर सुनो। तुम्हारे बुजुर्गों ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं। उनकी बातिल परस्ती का ये हाल था कि उनके दिलों में कि बछड़ा ही बसा हुआ था। उनके दिलों में वो गाय की ही अजमत थी। वो कहो अगर तुम ईमान वाले हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकतें करने का हुक्म देता है। इनसे कहो अगर वाकई अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए खास है, यानी आखिरत का घर जो जन्नत है सिर्फ तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, सिर्फ तुम ही जन्नत में जाओगे। ऐसे ही सिर्फ मुसलमान तुम ही जन्नत में जाओगे। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो। अगर तुम इस ख्याल में सच्चे हो, अगर तुम्हें ये लगता है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत देगा, तब तो तुम्हें ये चाहिए कि मौत की तमन्ना करो। लेकिन ये अपनी जिंदगी ने अजीज है। इनमें से हर एक शख्स मतलब चाहता है कि मैं 1000 साल जीऊं। अल्लाह ताला कहते हैं अगर इतना ही तुम्हें मतलब पक्का यकीन है कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देगा तो आप मौत की तमन्ना करो कि जल्दी से उस जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन ये जिंदगी भी जीना चाहते हैं, इसका मतलब ये अपनी आरज़ू पे जी रहे हैं। आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला ने कहा यकीन जानो ये कभी इसकी तमन्ना ना करेंगे, यानी मौत की, इसलिए कि अपने हाथों जो कुछ कमा कर इन्होंने वहां भेजा है, जो इन्होंने नेक अमाल करके जो इनकी करतूतें इन्होंने वहां भेजी हैं, उसका तकाजा यही है कि ये वहां जाने की तमन्ना ना करें। अल्लाह इन जालिमों के हाल को अच्छी तरह जानता है। तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का लालची पाओगे। आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला ने कहा तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का लालची पाओगे, यहाँ तक कि इस मामले में मुशरिकों से भी बड़े हुए हैं। इनमें से एक एक आदमी ये चाहता है किसी तरह 1000 बरस जिए, हालांकि लंबी उम्र तो कभी भी उसे अजाब से तो दूर नहीं फेंक सकती। जैसा कुछ अमाल ये कर रहे हैं अल्लाह तो उन्हें देख ही रहा है। आयत नंबर 97 से कि 97 से जिब्रील अलैहिस्सलाम पे एक बहतान लगा दिया करते थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से गलती हो गई। उन्हें जो वही लानी थी वो बनी इसराइल में लानी थी, वो गलती से जो है ना मक्का चले गए। ये इल्जाम लगाते तो अल्लाह ताला बहतान लगाते थे, तो इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये दुश्मनी ये रखते हैं। फिर आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला वही कहते हैं इनसे कहो जो कोई जिब्रील से दुश्मनी रखता है उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ने अल्लाह ही के हुक्म से ये कुरान तुम्हारे दिल पर उतारा है, जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक और तायीद करता है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और कामयाबी और खुशखबरी बनकर आया है। अगर जिब्रील से इनकी दुश्मनी की वजह यही है तो कह दो जो अल्लाह और कह दो कि जो अल्लाह उसके फरिश्तों और उसके रसूल और जिब्रील और मिकाइल के दुश्मन है, अल्लाह उन उन इनकार करने वाले विरोधियों का दुश्मन है। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी आयतें उतारी हैं जो साफ साफ हक को जाहिर करने वाली हैं, और उनकी पैरवी से सिर्फ वही लोग इनकार करते हैं जो फासिक हैं। क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता रहा है कि जब उन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक ना एक गिरोह ने उसे जरूर ही पीठ पीछे डाल दिया, बल्कि इनमें से ज्यादातर ऐसे ही हैं जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते। और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल उस किताब की तस्दीक और तायीद करता हुआ आया जो इनके पास पहले से मौजूद थी, तो इन अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाला कि वो मानो कुछ जानते ही नहीं थे। आयत नंबर 102 से इंशाल्लाह हम कल आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। टाइम हो चुका है, वो 11 से ओवर हम इस क्लास को नहीं लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। और जो कुछ रह गया है आज का टारगेट, तो इंशाल्लाह हम उन्हें आगे की क्लासेस में या जो शब कद्र हमें मिलेगी, जिसमें वो शब कद्र में हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, तो उसमें हम इस टारगेट को पूरा कर लेंगे जो भी हमारा वो रह जाएगा। तो 11 से ओवर ये हमारा उसूल है कि हम इस क्लास को नहीं लेकर जाएंगे। तो अब तक हमने जो पढ़ा, आयतें सूरह बकरा की 101 आयतें हमने मुकम्मल कर ली। तो इंशाल्लाह कल से आयत नंबर 102 से सूरह बकरा हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें कहने सुनने में समझने में जो गलती कोताहियाँ हो गई हैं अल्लाह ताला उसे हमें माफ़ करे और इसके सही मफहूम को हमारे दिलों में रासिख कर दे और इस कुरान पर हमें अमल पैरा होने वाला बना दे। और बनी इसराइल की जो करतूतें हैं अल्लाह ताला उन करतूतों पे उन जैसी हरकतें हमें हमें उन जैसी हरकतें करने से बचाए और हमें सच्चा पक्का मोमिन बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आज की नशिस्त में हमने सूर्य फातिहा से लेकर सूर्य बकरा की आयत नंबर 101 तक का बाबरकत ये जो सफर है हमने ये तय कर लिया है। और अल्लाह ताला हमें इन आयत को समझने और इन पर
غور کرنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے محترم استاد بھائی مواحد کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمیں قرآن کی روشنی سے منور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان کے علم میں برکت بھی دے، اخلاص میں اضافہ فرمائے اور اسے ان کے لیے ذریعہ نجات بھی بنا دے، آمین۔ تمام شرکا کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس بابرکت محفل کا حصہ بنے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کلاس میں جوائن ہوا کریں تو جو بھی لنک ہے وہ اسٹیٹس پر شیئر کر کے آپ جوائن ہوا کریں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بھی آپ جوائن کر سکتا ہے اس کلاس میں، کیونکہ یاد رکھیے قرآن کا سفر مسلسل جڑنے کا نام ہے، ایک دن کا نہیں ہے یہ سفر، بلکہ پوری زندگی کا ہے یہ سفر۔ آخر میں آئیے ہم سب مل کر محفل سے اٹھنے کی مسنون دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، اگر اس محفل میں ہم سے کوئی کمی یا کوتاہی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما دے، اور جو خیر کی بات کہی اور سنی گئی اسے ہمارے حق میں قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔